Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 23 for the subject of Introduction to Information Technology. In this lecture we are going to perform different practical tasks on Microsoft Excel. So here are different objectives of this lecture. We will go through different general settings and general work in Microsoft Excel, and then we will discuss the home button and its functions. सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं. So what are different general things? First one is the data entry. As I have discussed earlier that Microsoft Excel is a platform or a software that is used to organize data in the form of tables, and later on we can perform calculations and different functions on this data. We can create summaries, we can create reports, we can create charts, and we can enter accounting information as well. So for this we need data entry. For entering data we can use the cells provided by Microsoft Excel. For example, I want to store the name of student and their roll numbers and CGPA. So I can write up here that roll numbers, then I can write name, and then I can write CGPA. So this is basic data entry. Then I can write, for example, roll number 1, name is ABC and CGPA 3.2. Roll number 2, name DEF, CGPA 3.5. Roll number 3, GHI, CGPA 3.4. So this is basic data entry in Microsoft Excel. Then we have sheets. By default we have only a single sheet, but we can add more sheets if we need. For example, we need to enter data for library. We can simply create a sheet by pressing the plus button, and we can write roll number, library number, and books, issued books. We can simply write roll number 1, library number is 105210, and issues books 2. तो इस तरह से हम डाटा एंट्री कर सकते हैं. रोल नंबर 2, रोल नंबर 105789, इशूड बुक्स 0. इस तरह से हम एक्सेल में डाटा एंट्री कर सकते हैं. नाउ वी हैव 2 शीट्स. वी कैन टॉगल अमंग दीज शीट्स इफ़ वी हैव सम अदर शीट्स. और शीट्स को मैनेज करने का एक प्रॉपर वे ये भी है कि हम शीट को रीनेम कर लें. फॉर दिस वी कैन डबल क्लिक ऑन द वर्ड शीट and type CGPA list. So we can get an idea that this sheet contains CGPA of different students. Similarly, we can double click on sheet 2 and write library record. So this sheet can give us idea that we are maintaining library record in this sheet. So sheets are very effective way to organize data in Microsoft Excel. Similarly, we can move sheets from one place to another. For example, if I want to have the library record before CGPA list, I can simply hold a click here and move it here. So clearly library record is now placed before the CGPA list. Similarly, you can create a separate copy of CGPA list. I have also explained the same process in previous lecture. You can delete any sheet by right clicking the sheet and delete it. You can delete any of the sheets. Similarly, there is function that is protect sheet, but I will be discussing this function in a later stage, that how we can protect our sheet to work effectively. Then we have column and rows dimensions. अगर आप इस लिस्ट को देखें तो यहाँ पर इशूड बुक्स जो है वो आपको ऐसे लग रहा है जैसे 2 कॉलम्स में प्लेस है.
it means the column width is not right for issued books. So we can simply click on, when the symbol appears, we can simply click on it. You can clearly see the width, that is 64 pixels. We can drag it to increase the width. Now the width is 95 pixels. We can further drag it to get 129 pixels. So we can drag columns or resize columns. Similarly, if you see that these rows are congested, we can increase the row height as well. हम इस सिंबल पर होल्ड करें तो ये साथ ही हमें रो की हाइट बता देता है. हम इसको ड्रैग करके हाइट को अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर सकते हैं. सो दिस इज़ बेसिक वर्किंग विद सेल डायमेंशंस और row and column dimensions. There is another way to do this. You can simply right click on the column and go for column width. Now the column width is 8.43. You can write 25. Now the column width is 25 units. Similarly, to increase the row height, you can right click on the row and go to the function, go to the option row height. Now the row height is 15. You can type 50 here. सो दिस इज़ द रो हाइट. तो इस तरह से आप रो और कॉलम की डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं. देन वी हैव अनदर फंक्शन हाइड अनहाइड. नाउ दिस फंक्शन इज़ वेरी हैंडी. फॉर एग्जांपल, यू वांट टू हाइड दिस कॉलम, you simply click on this, right click and click hide. Now the column is hidden. Now if I zoom it, you can see that there is a column A, there is column B, and then there is column D, and there is a slight space here. और ये स्पेस आपको बता रही है कि इन द मिडल कोई कॉलम हिडन है. इसी तरह हम रो को हाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ये CG पे लिस्ट है, मैं यहाँ पर रो 3 को हाइड करना चाह रहा हूँ. तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक और हाइड. नाउ यू कैन क्लियरली सी we have row number 1, we have row 2 and then we have row 4. और इनके दरमियान में एक बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है जो क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पर कोई हिडन रो एग्जिस्ट करती. अब हम देखते हैं कि हम अनहाइड कैसे कर सकते हैं. यहाँ पर कॉलम हिडन है, हम इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड कर देंगे. कॉलम दोबारा से आपके सामने आ गया. इसी तरह हम इन दो रोज़ को सिलेक्ट करेंगे और अनहाइड पर क्लिक कर देंगे तो हिडन रो भी आपके सामने डिस्प्ले होगी. सो दिस इज बेसिक वर्किंग विद कॉलम्स एंड द रोज. नाउ द नेक्स्ट टास्क इज द फिल हैंडल. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन रोल नंबर्स हेयर. सो रोल नंबर्स आर नॉर्मली इन सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8. सो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग ईच एंड एवरी रोल नंबर, I can use a feature that is known as fill handler. Now what is a fill handler? Click on the column and go move to this point. There is a green dot. अब जब इस पर आप कर्सर लेकर जाते हैं, कर्सर का साइन वाइट प्लस साइन से ब्लैक प्लस साइन में चेंज होता है. दिस इज बेसिकली फिल हैंडलर. अब आप कंट्रोल प्रेस करें, कंट्रोल की लेफ़्ट क्लिक प्रेस करें और इसको ड्रैग करना स्टार्ट कर दें. सो आप देखेंगे कि इसने ऑटोमेटिकली लिस्ट क्रिएट कर दी. इसी तरह मैं अगर यहाँ पर A लिखता हूँ और मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो इसने सेल्स कॉपी कर दिए, क्योंकि बेसिकली ये हमारे पास अल्फ़ाबेट टेक्स्ट है तो इसलिए ये इसकी कॉपीज़ क्रिएट कर देता है. और जो हमारे पास न्यूमेरिक टेक्स्ट होता है उसकी ये नंबरिंग बना देता है. जैसे 1 है, मैं इसको कंट्रोल प्रेस किए बगैर कर रहा हूँ. नाउ आई एम यूजिंग फिल हैंडल विदाउट प्रेसिंग कंट्रोल. इट हैज़ सिंपली कॉपीड द सेल्स. अब अगर मैं इसको सीरीज़ में चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको रेज नहीं करूँगा. ये आपको एक ऑप्शन बॉक्स नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटो फिल बॉक्स पे और इसको आप फिल सीरीज़ पे क्लिक कर देंगे तो इसने ये सीरीज़ क्रिएट कर दी. लेकिन अगर हम कॉपी सेल्स पर आ जाएंगे तो जो सेल की वैल्यूज़ होंगी उनको ये सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देगा.
इस तरह इस टेक्स्ट पर आ जाएं, तो इसको चाहे आप कंट्रोल प्रेस करके कर लें, चाहे कंट्रोल के बगैर कर लें, ये इसको नहीं करेगा क्योंकि ये सिंपल टेक्स्ट है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज हम कुछ इस तरह से एक सिंपल लिख के देखते हैं, UE-10, इसको हम फिल हैंडल यूज़ करके देखते हैं। अब इसमें मैंने फिल हैंडल यूज़ किया तो आप देख रहे हैं कि उसको उसने 10, 11, 12, 13 कर दिया। नो डाउट ये भी टेक्स्ट है, लेकिन एक्सेल का फॉर्मेट इंटेलिजेंट है, वो इसको बता रहा है कि ये हमने कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर लिखा है, जिसको अगर हम फिल हैंडल यूज़ करें तो उसने रोल नंबर की सीरीज़ क्रिएट कर दी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 10 जून 2020 और अगर मैं इस पे फिल हैंडल यूज़ करूँ तो ये आपको डेट्स को भी फिल कर देता है, यानी आप कैलेंडर भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको हैश सिंबल क्यों नज़र आ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि जो टेक्स्ट है उसकी विड्थ नहीं इसमें एडजस्ट हो रही, तो हम इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर देंगे तो आपके सामने ये शो होना शुरू हो जाएगा। नाउ दिस इज़ बेसिकली द वे टू यूज़ फिल हैंडल। लेकिन हम इसको देखेंगे कि इसको हमने किस तरह से इफ़ेक्टिवली डेट और टाइम पर यूज़ करना है। अभी जस्ट हमने फिल हैंडल का सिंपल यूज़ सीखा। देन वी हैव कॉलम डाटा टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल आई क्लिक ऑन ए कॉलम and press Ctrl 1. So these are basically column data types. We have general data type, we have numeric data type, we have currency data type, we have accounting data type, date data type and time data type. For example, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और Ctrl 1 प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ गया कि इसकी डाटा टाइप क्या है, डेट है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो आप अगर इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करें तो आपको डेट नज़र आ गई। इसी तरह आप इस पर क्लिक करें, आप इसके फॉर्मेट को किसी और वे में चेंज कर सकते हैं, जैसे ये हमें डेट नज़र आ गई। हम चाहते हैं कि ये सारे इसी फॉर्मेट में हो जाएं, तो हम इसको फिल हैंडल को यूज़ करें और यहाँ पर हमारे पास डेट भी आ गई और सारी कंसिस्टेंट फॉर्मेट में आ गई। लेकिन अगर हम नहीं चाह रहे तो हम इसको कॉपी सेल्स कर देंगे तो सेम डेट हो जाएगी। वी कैन क्लिक ऑन द फिल डेज ऑप्शन, it will fill the days. We can click on fill months option, it can fill the months. We can click on the years option, it can fill the years. अब आप देखें मंथ्स और डेट सेम है लेकिन ईयर्स फिल हो रहे हैं। अगर हम मंथ्स पे क्लिक करें तो मंथ्स फिल हो रहे हैं, बाकी ईयर वो सेम रह रहे हैं। तो ये बेसिकली फिल हैंडल को यूज़ करने का मेथड है। और आपके पास कॉलम डाटा टाइप्स हैं। इसी तरह हम यहाँ पर क्लिक करें तो इसने इसको जनरल कह दिया, आप इसको नंबर डाटा टाइप भी कह सकते हैं। हम इसकी डाटा टाइप पर क्लिक करें, इसने इसको जनरल किया। मोस्ट ऑफ द केसेस हम जनरल डाटा टाइप पे वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एनेबलिंग बॉर्डर इन प्रिंट। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू प्रिंट दिस शीट एंड आई क्लिक ऑन प्रिंट। अब जब आप प्रिंट पर देखेंगे, वी हैव द व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट लेआउट, बट यू आर सीइंग सेल्स here. However, in print there are no sort of cells. So in order to print the cells, we have to enable the borders. How can we enable border? We can simply select the cells and click on this option. This is border. So we can use four-sided borders. And now we click on print. So you can say that जिस एरिया पर आपने बॉर्डर लगाए हैं उन एरियाज पर बॉर्डर आ गए हैं। सो अगर आप बॉर्डर्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको एक्सप्लिसिटली ये बॉर्डर अनेबल करने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव द होम रिबन बटन। होम रिबन बटन कंटेन्स डिफरेंट ऑप्शंस जस्ट लाइक Microsoft Word. Now first one is the font style. For example, we have written the text. Now it is in Calibri format. We can change it from here. Next is the font size.
we can click on this and you change the font size to 60. Similarly, we have formatting. We can make text bold, italic, underline. These are basic formattings. Then we have coloring. Now here we have two types of colors. One is the font color and other is the highlight color. For example, I click on this cell and click on this button. Now this is font color. I can change the font color. I click on this cell and go to this option. This is highlight color. So this is basically highlight color. तो आप कलरिंग भी इसमें कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आती है अलाइनमेंट ऑप्शन. नाउ व्हाट आर द अलाइनमेंट ऑप्शंस? Excel has much more alignment options than Microsoft Word, but there is a slight difference. आपको Excel में justify की ऑप्शन नहीं मिलेगी because we are not writing paragraphs, we are just typing data into different cells. So here we have the left alignment, the right alignment, the center alignment. अब इसके ऊपर आपको 3 और बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं. ये बॉक्सेस हैं वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए. वी हैव ए टॉप अलाइनमेंट, वी हैव मिडल अलाइनमेंट एंड वी हैव ए बॉटम अलाइनमेंट. अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सेल की विड्थ को, हाइट को इंक्रीज कर देते हैं. नाउ बाय डिफॉल्ट 15 हैज़ मूव्ड टू द बॉटम ऑफ द सेल. नाउ इफ आई क्लिक मिडल यू विल सी इट इन द मिडल. इफ आई क्लिक टॉप यू विल सी इन द टॉप. सो ये हमारे पास क्या है, इसकी कुछ अलाइनमेंट ऑप्शंस. नेक्स्ट हमारे पास एंगलिंग है, टेक्स्ट एंगलिंग. फॉर एग्जांपल दिस इज रोल नंबर एंड आई डोंट वांट टू राइट इट स्ट्रेट. आई कैन गो टू टेक्स्ट एंगलिंग and angle it clockwise. Now you can clearly see that roll number has been angled at a clockwise direction. Similarly, I go to CGPA and write it like this. अगर आप देखें तो ये CGPA वर्टिकली आपको नज़र आना शुरू हो गया. इस तरह हम लेट्स सपोज इस फील्ड पर जाते हैं और इसकी हम अलाइनमेंट कह देते हैं रोटेट टेक्स्ट डाउन. तो ये इस तरह से आपको नज़र आ जाएगा. हम इस ऑप्शन को क्लिक करें और यहाँ पर हम कर दें रोटेट टेक्स्ट अप. सो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा. अब यहाँ पर हैश क्यों आए, क्योंकि रो हाइट हमें बढ़ाने की ज़रूरत है. सो इस तरह से आप टेक्स्ट की डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इंडेंटेशन. देयर आर 2 इंडेंटेशंस, डिक्रीज एंड इंक्रीज. नाउ अगर आप इस कॉलम को देखें या सेल को देखें तो इसका जो कंटेंट है वो टुवर्ड्स लेफ़्ट साइड है. हम इसको इंडेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसको राइट साइड पर ले जा सकते हैं, इंडेंट को डिक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस. देन अगेन वी हैव द टेक्स्ट डायरेक्शन, राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट. आप इनको भी सेम जिस तरह हमने वर्ड में लिखा था, अगर हम लेफ़्ट टू राइट करें तो टेक्स्ट इस तरह से लिखा जाता है. बट इफ़ वी चूज़ राइट टू लेफ़्ट, टेक्स्ट विल बी रिटन लाइक दिस. सो दिस इज़ बेसिकली टेक्स्ट डायरेक्शन. नेक्स्ट वी हैव an exciting option that is text wrap. Now how text wrap works? For example, मैं यहाँ पर लिखता हूँ I am using Excel. अब टेक्स्ट हमने लिखा एक कॉलम है लेकिन ये स्पैन कर रहा 2 कॉलम्स पे. सो इफ आई क्लिक रैप टेक्स्ट, द रैप टेक्स्ट ऑप्शन enables us to fit the entire text in a single cell. अब जितना मर्जी आप लेंथी टेक्स्ट लिख लें. अगर हम इसको लिखते हैं I have been using MS Excel since 2009. It is excellent software. तो ये सारे का सारा एक सेल में आपको नज़र आ रहा. सेल की हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी लेकिन टेक्स्ट जो है एक सेल के अंदर ही रहेगा, डिफरेंट सेल्स में नहीं जाएगा. नाउ दिस इज़ अनदर ऑप्शन.
देन वी हैव कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन, ये आप सारों को पता है. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, आई विल क्लिक ऑन दिस, आई विल गो टू कॉपी एंड आई विल पेस्ट द सेल्स हेयर बाय प्रेसिंग कंट्रोल V. जो सिंपल कॉपी पेस्ट है, इस तरह इसको मैं कट करके यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ. सो यू कैन सी दैट इट हैज़ मैनेज फ्रॉम देयर. सो दीज आर कट कॉपी पेस्ट. देन वी हैव मर्जिंग. मर्जिंग का कॉन्सेप्ट सेम है जो हमने वर्ड में भी पढ़ा था. जैसे फॉर एग्जांपल हम इन दो सेल्स को कंबाइन करना चाहते हैं. आई विल सेलेक्ट दी सेल्स एंड क्लिक ऑन द ऑप्शन मर्ज सेल्स. इट विल मर्ज बोथ दीज सेल्स. फॉर एग्जांपल आई वांट टू मर्ज दीज सेल्स but want my text to align at center position. I will select the text, I will go to merge option and I will select merge and center. Now both cells are merged and the text is placed at the center location. Similarly यहाँ पर दो और options हैं जो कि आप merge across और unmerge cell को देख सकते हैं. unmerge cell से क्या होगा, cells जो हैं वो split हो जाएंगे, जो स्प्लिट सेल की हमने ऑप्शन देखी थी. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फॉर्मेट दीज सेल्स इन डिफरेंट वेज. देन वी हैव स्टाइल्स. फॉर एग्जांपल आई क्लिक ऑन दिस सेल एंड हेयर आर डिफरेंट स्टाइल्स. आई क्लिक दिस स्टाइल इज अप्लाइड. आई कैन अप्लाई दिस स्टाइल, आई कैन अप्लाई दिस स्टाइल. सो दीज आर डिफरेंट स्टाइल्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. Then we have format painter. It works same as that in Word. मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सेल है B5 इसकी फॉर्मेटिंग B2 जैसी हो जाए. So I will click on the B2 cell, that is the source cell. I will click on format painter. Now the format painter has saved the formatting information and when I click the B5 its format will be same as that of the B cell B2. Then we have numbering. How we can manage numbers. ये आपके सामने numbers हैं, ये आपके सामने numbers नज़र आ रहे हैं. We have a general number, we have number, we have currency number, we have accounting, we have short date, long date, time, percentage, fraction. For example मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2000. Now it is a simple number, but when I click currency and open it up, it adds the sign dollar. I can change the currency sign to euro. I can change the currency sign to pounds. I can change the sign to French currency. और इस तरह अगर आपको PKR करेंसी चाहिए तो आप यहाँ से डिफरेंट करेंसीज को ऐड कर सकते हैं. जैसे यहाँ से आपको ये PKR मिला, तो अगर आप ये करेंगे तो ये दिस इज़ PKR 2000. और अगर हम यहाँ पर 4000 भी लिख देंगे PKR उसके साथ ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर अगर हम 5000 लिखेंगे इसके साथ नहीं होगा. क्यों? इसकी टाइप जनरल है और इसकी टाइप क्या, नंबर. फॉर एग्जांपल आई क्लिक ऑन परसेंटेज, इट विल ऐड ए परसेंटेज साइन. यू कैन डू फ्रॉम हेयर एज वेल. ये बटन्स भी. नाउ लेट्स सपोज दिस इज CGPA. CGPA is in decimal points. I have used 1 decimal point. I can increase the decimal points. For example, when I press this button, it increases the decimal points. We have 3 decimal points. Similarly, I can decrease the decimal point. For example, I have this. When I decrease the decimal point, it automatically rounds up this number. So this is working with numbers. Now we have formatting tables. How we can format tables? For example, this is a table. I click on this and I want to format it. ये formatting table, ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, डार्क या लाइट हैं. फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझसे पूछेगा कि हमने
किस रेंज में करना है सेल फॉर्मेट टेबल को। बेसिकली हमने सेलेक्ट किया था इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, हम ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने टेबल का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप टेबल का फॉर्मेट चेंज करेंगे यू विल सी ए डिज़ाइन टैब, you can change the design as well. So this is basically table formatting. Now we have working with cells. How we can work with these cells? For example यहाँ पर मैं एक सेल ऐड करना चाह रहा हूँ, एक कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ। I will click on the column and go to insert. I will go to insert sheet column. A column will be added. Similarly, I go here and I go to insert and select insert sheet row. A row will be added. तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट करेंगे तो रो इंसर्ट होगी, कॉलम पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो कॉलम इंसर्ट होगा। So this is basically working with insert. Similarly, you can delete columns. You can click on this column and select delete sheet column. इसी तरह आप कॉलम पर राइट क्लिक करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। सिमिलरली आप रो पर राइट क्लिक करें, इसको डिलीट कर लें, या आप सिंपल रो पर क्लिक करें और डिलीट की ऑप्शन से जाके डिलीट रोज कर दें तो रो डिलीट हो जाएगी। इंसर्ट पे जाके अगर हम इंसर्ट शीट करेंगे तो एक और शीट इंसर्ट हो जाएगी, और अगर हम डिलीट शीट पे क्लिक करेंगे तो शीट डिलीट हो जाएगी। सो दिस इज़ ए क्विक वे टू क्रिएट एंड डिलीट द शीट्स। Then we have the auto sum. Now what is auto sum? For example, I have written number 3 to 4. I have written different numbers. यहाँ पर मैं नंबर्स लिख देता हूँ 2, 3 और 4। मैं इनकी ऑटो सम क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं इन पे क्लिक करूँगा, मैं ऑटो सम पे जाऊँगा, सो इसने यहाँ पर इनकी ऑटो सम शो कर दी। दिस इज़ बेसिकली द ऑटो सम। Now we have clear. What can clear do? Suppose I have selected a cell and I go to clear and I click clear formats. It has clarified the format to the base version. Now if I click clear all or select here and clear all, it will delete the text and it will delete formatting as well. अब हमारे पास जो लास्ट फीचर आता है वो आपके पास आता है फाइंड एंड सेलेक्ट का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर देता हूँ और मैं जाता हूँ फाइंड पे। लेट्स सपोज आई राइट 10520, द हाईलाइट विल जंप टू दैट सेल। दिस इज बेसिकली फाइंड एंड select. Similarly, we have an option of find and replace. We can go to find and replace. For example, I want to replace the roll number 10520 with 10521. So I will write find 10520 and I will write 10521 to replace it. Now it has found 10520. So when I click replace, it will replace it. So this is find and replace. अब लेट्स सपोज हम यहाँ पर कुछ और रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं 3, 2, 1 एंड 4 और लेट्स सपोज 50। वी वांट टू सॉर्ट दिस डाटा। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट का नाम टॉप पर आ जाए या उसका रोल नंबर पता चल जाए जिसके पास सबसे ज़्यादा बुक्स हैं। सो इसके लिए हम सॉर्ट एंड फिल्टर यूज़ करेंगे। अब जो पहली रो है ये हमारे पास हेडर है, हम इस रो को क्लिक करेंगे, वी विल सेलेक्ट इट एंड गो टू सॉर्ट एंड फिल्टर। आफ्टर clicking sort and filter, there are different options. We will first have to apply a filter. Before sorting, we will have to apply a filter. Now when I click the filter,
you will see filter boxes on each cell. Now for example, I move here and click on sort largest to smallest. So you can clearly see the largest value is at the first place and the smallest value is at the second place. अगर हम रोल नंबर के हिसाब से इसको करना चाह रहे हैं कि रोल नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें, क्लास की लिस्ट बनाएं, तो हम इस बॉक्स पर क्लिक करें और इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दें. तो फिल्टर लगाने का ये फ़ायदा है कि सारी की सारी रोज़ जो है वो कंसिस्टेंटली सॉर्ट होंगी. सो दिस वाज द बेसिक ऑपरेशन that we can use in Microsoft Excel.